हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रामेटिक आईएएस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए 2024 का क्वेश्चन पेपर। यस, वी आर गोइंग टू डू 2024 सिविल सर्विसेज का सी सैट का पेपर। और हम लोग ऑब्वियसली वैसे ही सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे हम करते आए हैं। अब ये सीरीज 2025 की नेक्स्ट आएगी, एक और पेपर सॉल्व करना होगा। उसके नेक्स्ट क्या करना है, I am going to give you some of the tricks, or you can say some of the suggestions. I will say that कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है so that you can try to solve maximum questions in your exam. ठीक है, इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आप लोगों को खुद को भी अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा। वो चीज़ें मैं आपको जब 2025 का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको अपने आप को कैसे एनालाइज करना है और कैसे अपने आप को जज करना है कि आप किस चीज़ में स्ट्रांग हो और किस चीज़ में वीक हो। उसके बाद आपने सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को, वो सीखेंगे। ठीक है, so this is going to be the new series that we are going to launch after I am going to finish the 2025 का CSAT का पेपर। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने 2024 का करना है CSAT का पेपर स्टार्ट। तो let's get started with it. Of course we are going to start with the English version. ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले पैसेज ही आता है, तो सबसे पहले हम पैसेज रीड करेंगे। ठीक है, passage number one, it will be: according to the Food and Agriculture Organization, 1/3 of the food produced for human consumption is lost or wasted globally. Food is lost or wasted throughout the supply chain, from the initial agricultural production to the final household consumption. The increasing waste also results in land degradation by about 45%, mainly due to deforestation, unsustainable agriculture practices, and excessive groundwater extraction. The energy spent over wasted food result in about 3.5 billion tons of carbon dioxide production every year. Decay also leads to harmful emissions of other gases in the atmosphere. Addressing the loss and the wastage of food in all form is critical to complete the cycle of the food sufficiency and food sustainability. Okay, now let's do the question number one. Which of the following statements best reflect the most logical and rational inferences? The current method of food distribution are solely responsible for loss. And of course, solely is in a very extreme word. We can't take it into consideration. Land productivity is adversely affected by prevailing trends of food loss and wastage. This is word कि जो लैंड प्रोडक्टिविटी है वो अफेक्ट हो रही है हमारे ट्रेंड्स की वजह से, फूड वेस्टेज की वजह से। रिडक्शन इन द फूड एंड वेस्टेज ऑफ रिडक्शन इन द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट्स इन लेसर कार्बन। लेसर नहीं होता, बढ़ जाता है, इट विल इंक्रीज। 3 इज रॉन्ग। तो 1 and 3 तो हम लोगों ने बाहर ही निकाल दिया है। ओके, reduction in the loss. Okay, just a minute. 3 is right. See, what we are saying is reduction in loss and wastage. अगर वो loss और wastage of food कम होता है तो वो कार्बन फुटप्रिंट्स को भी कम कर देगा। Yes, this is true कि अगर वेस्टेज कम होगा तो कार्बन फुटप्रिंट्स भी कम होंगे। ओके, एंड विद दिस द फर्स्ट क्वेश्चन, जब हमने फर्स्ट सोलली की वजह से उसको निकाल दिया बाहर, तो उसी की वजह से हमें ऑप्शन मिल गई थी वैसे तो, है ना। तो इस चीज़ के लिए पैसेज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी वैसे तो। चलो, नेक्स्ट इज फॉलोइंग assumptions. फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म्स नीड टू बी री इमेजिन्ड एंड मेड इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। हमें री इमेजिन करना पड़ेगा और उसको और इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, ensuring the reduction of wastage and loss of food is a social and moral responsibility of all citizens. Of course, दोनों चीज़ें ट्रू हैं। सी पार्ट पे जाएंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैसेज। पैसेज नंबर 2. As inflation rises, even governments previously committed to budget disciplines are spending freely to help households. Higher interest rates announced by central banks are supposed to help produce modest fiscal austerity, because to maintain the stable debts while paying more to borrow, governments must cut spending or raise taxes. Without the fiscal backup, monetary policy eventually loses traction.
Higher interest rates become inflationary, not disinflationary. To borrow more to pay rising debt service cost, the risk of monetary unmooring is greater than the public debt rises because interest rates become more important to budget deficits. अब हमें बताने हैं इन्फ्लुएंसेस. सेंट्रल बैंक कैन नॉट ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग. बजटरी बैकिंग नहीं होगी तो सेंट्रल बैंक जो है वो आपका इन्फ्लेशन को कम नहीं कर पाएंगे. तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि सेंट्रल बैंक नहीं कम कर पाएंगे? आई डोंट थिंक. विदाउट द फिजिकल बैकअप होए बिना जो है मॉनेटरी इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन. तो इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन बोला जा रहा है कि इवेंचुअली वो चीज़ें काम नहीं करेंगी, लेकिन अभी एट प्रेजेंट हम कैन नॉट नहीं यूज़ कर सकते हैं. The effects of monetary policy depend on the fiscal policies pursued by the government. Of course, monetary policies जो है वो fiscal policy पे dependent तो होती ही हैं. This is basic economy. We have read it in the UPSC syllabus, right? Assumptions बताने हैं. Fiscal policies of government are solely responsible for higher prices. नहीं हो सकता. Higher prices do not affect the long-term government bonds. हायर प्राइसेस जो है वो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इफेक्ट कर ही नहीं सकते. ऐसा तो कैसे हो सकता है भाई? दोनों चीज़ें गलत हैं. डी पार्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस. तो एक अगर क्यूब है तो उस क्यूब में हमें कितने लीस्ट रिक्वायर्ड मिनिमम कितने हम कट्स मार सकते हैं सो दैट वो 64 हो जाए. तो हमें बेसिकली ये बताना है कि किसका क्यूब हो सकता है. इसका क्यूब रूट निकालो 64 का, क्योंकि तीनों साइड से कटेगा ना. ओके. वन मोर थिंग. क्यूब रूट होगा कि स्क्वायर रूट होगा? इट विल बी स्क्वायर रूट एंड 8 विल बी द आंसर. देखो 8 कट्स ऐसे पड़े, ठीक है, और 8 कट्स आपने यहाँ से ऐसे डाल दिए. तो यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से जब कटेगा तो आपका 64 तो आपको क्यूब्स मिल जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इन द एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन है, हमें चूज करना है इन तीनों में से at most 2 times what is the smallest non-negative value of the expression. non-negative बनाना और smallest बनाना है. तो of course हम यहाँ पे multiply तो नहीं लगा सकते, वरना 5 4 20 will be a very big number. तो हम यहाँ पे प्लस ले लेते हैं. ठीक है. या फिर माइनस भी ले सकते हैं. +3 -2 +1 ऐसे लेके देखें. ये आया 1, ये आया 1 और एक ये आया 1, तो 3 बन रहा है ना. और इन्होंने बोला है एट मोस्ट 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं आप एक चीज को, तो नॉन नेगेटिव भी रखना है. अगर मैंने करा 5 + 4 -3 × 2 -1, अगर ऐसा करा तो ये हो गया 9 -6 -1. What it will give you? It will give you 2. ठीक है. 2 आ गया. अब इससे और छोटा भी बन सकता है क्या? 5 - 4 this will give you 1. और मैं यहाँ पे लिख दूँ -3 + 2 और फिर +1 कर दूँ. तो ये हो गया 1 -1 +1. इट विल गिव यू 1. क्या इस चीज़ का रिजल्ट 0 हो सकता है? 0 तो आई डोंट थिंक हो पाएगा, और 1 से छोटा नहीं जा पा रहे हैं हम. पॉजिटिव ही रखना है. तो लेट्स गो विद द सी पार्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज.
अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6K days. ठीक है, लेट्स से कि मैन जो है वो m है और वो काम कर रहे हैं 6K days में कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, वेयर k इज अ नेचुरल नंबर. बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मैन बी इंक्रीज्ड सो दैट द वर्क बी कंप्लीटेड इन 5K days. अब मैन जो है हमने ले लिए n या m प्लस x ले लो और वो काम कर रहे हैं 5K days में. तो k से तो k कट जाएगा, 5 इधर जाएगा 6/5 है ना. तो इसका मतलब ये हो गया 1 + 1/5 है ना. और 1/5 को अगर आप परसेंटेज में निकालोगे तो इट विल गिव यू 20%. तो कितना इंक्रीज होना चाहिए? 20% इंक्रीज होना चाहिए. 9 पहले कर लेते हैं. हाउ मेनी कॉन्सिक्यूटिव जीरोज आर देयर इन द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट आपको गिवन है. ठीक है, अब इसका बताना है कि कितने कॉन्सिक्यूटिव जीरोज हो सकते हैं. हाउ मेनी, एक तो कॉन्सिक्यूटिव पे ध्यान देना. कॉन्सिक्यूटिव जीरोज आर देयर इन द एंड, मतलब इस पूरे नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में कितने जीरोज आएंगे. ठीक है, वी हैव टू टेल दैट. देखो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें 5 और 10 का क्या सीक्वेंस बन रहा है. ठीक है, 4 की पावर 8 है, 3 की 6 है, 2 की 4 है. 1 2 4 8 एंड इट इज गोइंग ऑन टिल बिगर नंबर्स, राइट. तो 10 की पावर क्या होगी? 20 होगी. तो 20 नंबर्स तो ये हो गए जीरोस. ठीक है, 20 की पावर क्या होगी? 40. तो 20 यहाँ से आया, 40 यहाँ से आया, इतने जीरोस तो हो ही गए, 60 तो हो ही गए. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू गेट द नंबर्स जिससे 10 और बन सकता है, 10 के मल्टीपल्स बन सकते हैं. मतलब 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 ये इकट्ठे बनेंगे तो 4 ये और हो जाएंगे, राइट. इसी तरीके से 4 की पावर 8 और 25 की पावर 8, दिस विल गिव यू व्हाट? 100 की पावर 8, मतलब टोटल 16 हो गए. ठीक है, अभी तक कितने हो गए? 80 हो चुके हैं हमारे. गॉट इट. एक और नंबर बनता है 3 × 5. ठीक है, 3 × 5 दैट विल गिव यू 15 नंबर, राइट. अब अगर 15 की पावर आप और बड़ी ले लो, इसमें से 15 की पावर जो होगी वो होगी 30. इसमें से हम 5 निकाल सकते हैं, 5 की पावर 30. और 5 वैसे तो 10 था, उसमें से हमने 4 यहाँ यूज कर लिया. तो अभी हमारे पास 5 की पावर 6 और बची हुई हैं, राइट. और 4 हम यूज कर चुके हैं, लेकिन 5 और भी तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता होगा, राइट. किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 से मल्टीप्लाई होगा. 6 की पावर 12 होगी. 6 × 5 विल गिव यू 30, है ना. तो यहाँ पे 12 ले लिया, 30 की पावर 12 हो गई. तो 12 और जीरोज हो जाएंगे. ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकता है? अभी भी हमारे पास कितना बचा है? यहाँ से 24 पावर बची हैं 5 की. अब वो आप अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 की पावर 16 होगी, तो 16 और आ जाएंगे. ठीक है, 16 आ गए. अभी भी हमारे पास 24 के अलावा 16 के बाद कितने बच गए? 24 में से 16 माइनस करेंगे हम, बचेगा 8. ठीक है, अब 8 5 की पावर जो 8 है वो हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 12 की पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 8 60 आता है ना. या आप उसको और कोई नंबर ले सकते हो. 10 तो हमने सारे यूज कर लिया अलग से, तो 8 और हो जाएंगे. ना यू ऐड ऑल ऑफ देम. ठीक है, ये हो गया 60, ये हो गया 20, 80. ये और ये कितने हो गए? 80 + 20 इज गोइंग टू गिव यू 100. ठीक है, 100 बन रहा है. और आई थिंक ये 16 फिर मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया कहीं. आप इसको सॉल्व करना, द आंसर यू विल गेट विल बी सी पार्ट, दैट इज 100.
Now let's go to the 8th question. XYZ can complete a piece of work individually in 6, 8 and 8 hours. तो X, Y और Z जो है वो 6, 8 और 8 आवर्स में काम खत्म कर पा रहे हैं. ठीक है. 24 हमारा इनका LCM रहेगा, ये आएगा 4 और ये आएगा 3 और 3. ठीक है. However, only one person at a time can work in each hour. Nobody can work for 2 consecutive hours. All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of work that will take to finish the work? अब इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो you will get 10. तो मतलब क्या है कि 10 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट हो रहा है इन हाउ मेनी आवर्स? 3 आवर्स, क्योंकि एक बंदा एक टाइम पे 1 घंटे काम कर रहा है. ठीक है. तो तीनों ने 1-1 घंटे काम करा तो 10 यूनिट्स काम हो गया 3 घंटों में. ठीक है. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट 10 यूनिट्स और हो जाएंगे इन नेक्स्ट 3 मोर आवर्स. तो टोटल 6 आवर्स हो गए. अब 6 आवर्स के बाद जो नंबर आएगा वो आएगा x का, और वो 4 यूनिट बचे हुए कंप्लीट कर देगा 1 घंटे में. तो प्रॉपर आपके 7 घंटे में काम खत्म हो जाएगा. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं हम. ऑन January 1st अ पर्सन सेव्ड 1 रुपी. 2 जनवरी को उसने 2 रुपये बचाए. 3 जनवरी को उसने 3 रुपये बचाए. ऑन 3rd January ही सेव्ड 2 मोर देन ऑन द प्रीवियस डे. तो 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 4 लिया, एंड देन उसका 1 बचाया था, फिर 2 बचाए थे, फिर 3 बचाएगा, फिर 4 बचाएगा, 4 एक्स्ट्रा बचाएगा, फिर 5 एक्स्ट्रा बचाएगा. मतलब डिफरेंस जो है वो एक एक करके बढ़ रहा है. In the end of which date what will be the total as the perfect square as well as perfect cube? ऐसा आप मेरे को एक नंबर बता दो, स्मॉलेस्ट नंबर, जो कि आपका क्या है, परफेक्ट क्यूब भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है. मेरे ख्याल से 64 है. 4 का क्यूब होता है, 8 का स्क्वायर होता है, राइट? ओके. Now what we are going to do here is we are going to do apply the sum of an AP. Sum of an AP is n by 2. n हमें निकालना है ना. n by 2 2a. 2a will be 2 into 1 plus n minus 1 d. n minus 1 d will be 3. सॉरी. ठीक है. और इसका जो सम आना चाहिए वो 64 आना चाहिए. तो n हो गया 2 plus 3n minus 3 will give you 128 result. Okay. Now this will give you a quadratic equation जिसमें 3n square minus n minus 128 will give you as a 0. Now यहाँ से आपने n की वैल्यू निकालनी है और मुझे बताना है कि n होगा क्या. और इसने 1 जनवरी को ये स्टार्ट करा था, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो रिजल्ट होना चाहिए वो आपका 7, 8 या 9 होना चाहिए. तो आप या तो 7, 8, 9 इसमें डाल के देख लो. ठीक है. 3 इंटू 49 माइनस 7 माइनस 128. तो 27 टू 147 माइनस 0 तो नहीं आएगा, है ना. तो ये तो गलत हो गया ए पार्ट. अगर 8 लेंगे तो 3 इंटू 64 माइनस 8 माइनस 128. ठीक है. तो 3 4 12, 1 3 6 18 और 192 माइनस, बहुत बड़ा नंबर हो गया. 9 से भी लेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा. तो मेरे हिसाब से डी पार्ट विल बी द आंसर, नॉट पॉसिबल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 पैसेज आएगा, रीड करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को. टुडे इफ वी कंसिडर द सिटीज सच एज न्यूयॉर्क, लंदन एंड पेरिस as some of the most iconic cities in the world, it is because plans carrying a heavy system approach were imposed on their presence. The backbone of the system's theory is the process of translating social, spatial, and cultural desirables into mathematical models using computing, statistics, optimization, and an algorithmic way of formulating and solving problems. The early universities of the West, which began to train professionals in planning, spawned some of the most ingenious planners who were experts in this domain. This was because these very subjects were absorbed into the planning curriculum that had its root in the social sciences, geography, and architecture. Planning in India and its education differs from the West. Okay. Now we have to tell the rational inference.
Curriculum for urban planning courses should have diverse and interdisciplinary approach. In India, the city administration is under bureaucracy which lacks formal training in urban planning and management. I think हमने यहाँ पे ना अर्बन और रूरल की बात नहीं करी है, हमने इंटरकॉन्टिनेंटल और इंटर कंट्रीज की बात करी है, वेस्ट वर्सेस ईस्ट. तो ए पार्ट इज गोइंग टू बी आउट फ्रॉम आवर सिस्टम. ओके. सी इज इन इंडिया द मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज. देखो अगेन अर्बन एरियाज आ गया है विद हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, ये भी नहीं आएगा. अर्बन एरियाज आ गया अगेन. वी आर टॉकिंग अबाउट द ईस्ट एंड द वेस्ट कंपैरिजन. तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए. ठीक है. नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 12 भी है. assumptions बताने. इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विच with knowledge relevant to modern urban practices. Indian University at present have no capacity. No capacity तो बिल्कुल गलत है बेटा. In India needs new generation of urban professionals. ये हम कह सकते हैं कि हाँ हमें ज़रूरत है इन सब चीज़ों की. ठीक है. Now let's do the passage number 2. Not every voice on the internet commands the same kind of audience. When anonymous private entities with high capital can pay for more space for their opinions, they are effectively buying a louder voice. If political discourse in the digital sphere is a matter of outshining one's opponent till the election is won, then the quality of politics suffer. The focus on social media is restricted to the promotion of content that generates more user engagement regardless of how inflammatory the content may be. मतलब लोग व्यूज के पीछे कुछ भी डालने लग गए हैं आजकल, ये मतलब है इसका. constructed as a marketplace of views, social media ensures instant access to the information. Social media are not the idle moral institute but the product built by companies to make profits. Social media have been created to strengthen the democracies. In today's world, social media are inevitable for well-informed social life. ये भी नहीं है. तो ये हम कह सकते हैं कि it is a marketplace of views. Okay. Question number 14. फिर assumption बताने हैं. Internet is not inclusive enough. Inclusive तो बहुत ज़्यादा है, कोई भी वीडियो डाल सकता है इसमें. Internet can adversely affect the quality of politics. That is true. Only 2. ठीक है. अब ये बताने कि किससे divisible होगा. 2 and 3 की पावर हमने करी है. देखो 2 को 3 बार ऐड करोगे 6 आएगा. 6 की कोई भी पावर हो 3 से कट जाएगी. 3 यहाँ तीनों बार आ रहा है तो 3 से तो कट ही जाएगा. तो 3 तो होना ही चाहिए सब जगह पे. ओके. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. 2 से कटेगा क्या. 3 की पावर अगर 3 की पावर 1 होती है तो 3 होता है. 3 की पावर 2 होती है तो 9 होता है. 3 की पावर 3 होती है तो 27 होता है. एंड 3 की पावर 4 होती है तो 81 होता है. तो कैन यू सी कि ऑल नंबर्स आर ऑड, राइट. तो इसकी पावर कुछ भी हो द नंबर विल बी ऑड ऑलवेज, है ना. एंड दिस इज 2 की पावर. तो 2 की कितनी भी पावर ले लो सारी इवन होंगी, है ना. तो अगर ये एक इवन नंबर है और ये एक ऑड नंबर है, व्हेन यू ऐड एन इवन एंड ऑड नंबर यू विल ऑलवेज गेट एन ऑड नंबर. तो अगर वो ऑड नंबर होगा तो 2 से कैसे जाएगा, नहीं जा सकता, है ना. 2 and 37 2 and, तो ऑप्शन इज ओनली बी कि 3 और 37 से जाएगा लेकिन 2 से नहीं जाएगा क्योंकि दैट विल बी एन ऑड नंबर. इजी. Question number 16. What percentage of water must be mixed with honey so as to gain 20% by selling the mixture at the cost price? Let's say कि वो 100 रुपीज़ का मिक्सचर है, ठीक है, वाटर. उसमें उस मिक्सचर उस हनी में हनी हमें 100 रुपये का मिला है. अब हम उसमें कितना परसेंटेज ऑफ वाटर ऐड कर दें सो दैट अगर हम उसे 100 रुपये में भी बेचें तो हमें 120% का प्रॉफिट हो. ठीक है. 20% इज 1/5. तो इट विल गिव यू 6/5 ऑफ x if you are adding x minus y. Y is what? Y is the amount, the percentage of water. ठीक है. ये करना है हमें.
एंड 6/5 ऑफ y विल बी, इट विल बी, और x को हम लोग 100 ले लेते हैं, हमने ले लिया कि कॉस्ट प्राइस उसका 100 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये यहाँ आएगा, दिस विल गिव यू 11/5, y is equal to 100, now you are getting 500/11, गॉड। देखो मान लो 100 रुपये की चीज़ आई, 100 रुपये में 100 रुपये की चीज़ 100 लीटर की आई, हमने 100 लीटर की जगह पे उसमें से 20 लीटर हटा दिया, अब 80 लीटर्स था, वो आया 100 रुपये में था, लेकिन 80 लीटर्स में हमने 20 लीटर का पानी ऐड कर दिया और उसे 100 रुपये में ही बेच दिया, तो 20 रुपीज़ का हमें फ़ायदा हुआ 80 उसमें, ठीक है। दैट विल गिव यू 1/4, दैट विल गिव यू 25% ऑफ प्रॉफिट। हमें चाहिए ऐसा नंबर जो कि 1/5 दे दे हमें, राइट। 25/75 क्या होता है, 1/3 हो जाएगा, ओके। वी आर एडिंग मोर मिक्सचर टू इट, तो 80 की जगह अगर मैं 85 कर दूं और 15 लीटर्स हमने ऐड करा है, तो 5 3 ज़ा 5, सॉरी हाँ 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, नो 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 नो। और अगर मैं 10% ऐड करूं तो 10% इज नॉट कमिंग, 5 इज नॉट कमिंग, 4 इज नॉट कमिंग, 20% ही आप उसमें ऐड कर सकते हो पानी। तो अगर आपने पानी ऐड करा तो 20%, तो वो 100 रुपये की चीज़ अब 120 रुपये की बिकेगी। यस, ओके, नाउ आई गॉट इट। नाउ देखो 20% अगर आप ऐड कर रहे हो उसमें पानी, 100 लीटर का मिक्सचर था, उसमें 20% आपने ऐड करा, तो मतलब वो टोटल कितना हो गया, 120 लीटर हो गया, ठीक है। 120 लीटर का मतलब ये हुआ कि आपने 100 रुपये की चीज़ 120 रुपये में बेच दी। अब अगर आपने 120 में बेची है 100 रुपये की चीज़, तो आपको 120% का फ़ायदा हुआ, 120% मिला, दैट मीन्स 20% का गेन हुआ, राइट। ओके, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रिसीडिंग टू द जीरोज, राइट मोस्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट, जीरोज प्रिसीडिंग टू द जीरोज ऑफ द वैल्यू, जीरोज जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए यूनिट डिजिट की। तो आप इसको कर दो 3 × 10 की टोटल पावर 30, हमने 3 की पावर 30 का यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 7 सा 28 होता है, रिमाइंडर आपका आया 2, ठीक है। तो 3 की पावर 1 जब होती है तो 3 होता है, 3 की पावर 2 होती है तो 9 होता है, तो ये 9 यूनिट डिजिट हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये दो नंबर हैं डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, एक नंबर से डिवाइड हो रहा है और इनको सेम रिमाइंडर मिल रहा है 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 6, ठीक है। तो वो नंबर 6 हो सकता है या 6 का कोई मल्टीपल 3 हो सकता है, डिवाइजर हो सकता है, 1 तो हो नहीं सकता। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज द डिवाइजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर 1। अगर आप इसको 6 से डिवाइड करो, 421 को 6 से डिवाइड करो, 6 7 सा 42, 0, रिमाइंडर 1। 427 करेंगे 6 से डिवाइड, 6 7 सा 42, 6 1 सा 6, रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है। एक नंबर आ गया हमारे पास 6, 3 से डिवाइड करके देख लो अगर, तो क्या आएगा, 3 1 सा 3 एंड 12, 3 4 सा 12, ओके, 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, 3 2 सा 6, एक नंबर आ गया 3, दो नंबर्स मिल गए हमें, ठीक है। तो 1 क्रॉस हो गया। इसके अलावा 2 ले सकते हैं हम, नंबर 2, क्योंकि दोनों ऑड, नंबर 2 ले सकते हैं क्योंकि दोनों ऑड नंबर्स हैं, तो ऑफ कोर्स रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो 3 नंबर्स हो गए, हमें मिल गए 3 नंबर्स, so we are getting 3 numbers, C part will be the right answer. Question number 19, can X contains 399 liters of petrol and Y contains 532 liters of diesel. They are to be bottled in bottles of equal sizes, so as the whole petrol and diesel would be separately bottled. The bottle capacity in terms of liter is an integer. How many different bottle sizes are possible? तो पहले तो 399 और
32 के कॉमन डिवाइजर्स बता दो। इसका 3 हो गया, इसका 3 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो 3 हटा देते हैं हम यहाँ से। और आई विल चेंज द पेन इंक ऑल्सो। 3 से नहीं जा रहा है, 6 से जा रहा है क्या? 6 से नहीं जाएगा ऑफ कोर्स, 399 ऑड नंबर है। 9 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा क्या? 35 एंड 49, 7 से जा रहा है। 7 7 से 49, 7 6 से 42, ठीक है। 7 आ गया एक नंबर हमारे पास जो कॉमन डिवाइजर है, कॉमन देख रहे हैं हम, ठीक है। 11 से जा सकता है क्या? इलेवन से भी नहीं जाएगा, ठीक है। फिर 12 से तो जाना ही नहीं है। 13, 3 से 39, नहीं जाएगा 13 से। और 7 से ये किस पे डिवाइड हो रहा है? 7 5 ज़ा 35 एंड 7 7 ज़ा 49, 57 पे। और ये 7 से डिवाइड हो रहा है 7 oh god, 7 7 ज़ा 49 and 7 6 ज़ा 42. Now can we interchange them? We can't interchange them, तो ये कॉमन तो नहीं हुए, हटा दो यहाँ से। 7 के अलावा और कोई नंबर? 23 प्राइम नंबर्स मेरे को लग रहा है हो सकते हैं अगर हुए तो 399 और 532 के आपको कॉमन डिवाइजर्स बताने हैं। मतलब बेसिकली कॉमन, मतलब जो क्वेश्चन है वो बस इतना सिंपल है। कॉमन डिवाइजर्स ऑफ 399 एंड 532। तो एक हमें 7 मिला है, 7 के अलावा 19 से जा सकता है ये, और 133 से जा सकता है। तो वी हैव 3 पॉसिबल वैल्यूज टू, इतने पॉसिबल लीटर्स की बॉटल ले सकते हो आप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ द सम एस जो है वो x प्लस वाई प्लस जी है, वेयर x प्लस वाई प्लस जी जो है वो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं 10 से कम। द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 0। डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं तो यूनिट डिजिट 0 कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, प्राइम नंबर्स लेना है लेस देन 10। तो दैट मीन्स 2 3 5 या फिर 2 3 7 या फिर 3 5 7, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन होता है। 2 3 5 ये 7 में से कोई एक नंबर हो सकता है। तो यूनिट डिजिट में ना तो 0 तो हो ही नहीं सकती, यूनिट डिजिट में 9 भी नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट सिर्फ 5 हो सकता है, ओनली 3 वी आर गेटिंग। अच्छा, हमें ऐड करना है, सॉरी ऐड करना है। सो इफ यू आर एडिंग दीज 3 numbers you are getting 12, if you are adding these 3 numbers you are getting 13, if you are adding 2 3 5, अगर 2 3 5 ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट 0 बन रही है एक जगह पे, ठीक है। इफ यू आर एडिंग 3 5 7 तो यू आर गेटिंग 13 एज आंसर नाउ, नो 15 एज एन आंसर। तो यूनिट डिजिट 5 भी हो पा रही है, 5 से बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 3 7 से बड़े नंबर नहीं है, तो 19 तो नहीं बन पाएगा, तो 1 and 3 होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 अगेन पैसेज आएगा, फटाफट रीड करेंगे। By the time children reach class 8, the bulk of them tend to be in the age range of 13 to 15 years. But in our country, about a quarter of all children in the class 8 struggle with reading simple text, and more than half are still unable to do basic arithmetic operation like division. Every year, about 25 million young boys and girls from elementary school move into the life that lies for them beyond compulsory schooling. They cannot enter the workforce, at least in the organized sector, till the age they are to 18. For many families, these children are the first for their families ever to get this far in school. Parents and children expect as that such graduates from the school will go on to the high school or college. Hardly anyone wants to go back to the agriculture. On the other hand, abilities in terms of academic competencies are far lower than they should be, even based on the curriculum expectation of a class 8. मतलब करिकुलम एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनका एबिलिटी कम है, लेकिन दे आर एक्सपेक्टिंग मोर आउट ऑफ इट.
अच्छा, assumption for effective school education parents have a greater role than the governments. इसके बारे में हम assume भी नहीं कर सकते ना बोल सकते. School curriculum that conforms to today's requirement and is uniform for the entire country may address the issue brought out. ये तो कोई बात हुई नहीं मेरे हिसाब से, तो नीदर नॉर है. क्वेश्चन नंबर 22, सेंट्रल आइडिया क्या है? टोटल इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी. एक्सट्रीम वर्ड पहले हटा दो. मॉनेटरी इंसेंटिव्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, हम बात कर रहे हैं. सेंट्रल आइडिया भी नहीं है. पब्लिक पॉलिसी शुड इंश्योर दैट कॉम्पिटेंसीज एंड अचीवमेंट्स ऑफ यंग्स आर अलाइंड विद देयर एक्सपेक्टेशंस. चलिए, पैसेज नंबर 2. We take it for granted now that science has a social responsibility. The idea would not have occurred to Newton or Galileo. They thought of science as an account of the world as it is, and the only responsibility that they acknowledged was to tell the truth. The idea that science is a social enterprise is modern, and it begins as the Industrial Revolution. We are surprised that we cannot trace a social sense further back because we nurse the illusion that the Industrial Revolution ended a golden age. Okay. Best reflect the thinking of the author. Science must value the commitment of the scientist. Science is a product of civilized society and must be used as a promotion. नहीं, इसके अगेंस्ट बोला गया है सब. ये भी नहीं है. Must pursue the truth but be responsible for the social welfare. नहीं, आई विल गो विद द ए पार्ट. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस. अब यहाँ पे सीक्वेंस को फिल करना है. वी आर गेटिंग 2B है, CD. यहाँ पे हम 2A ले लें, फिर 2B ले लें, AB, फिर 2C ले लें, फिर ABC और फिर 2D ले लें. तो AACD होना चाहिए. AACD, C पार्ट. चलिए, क्वेश्चन नंबर 5. 2 लोग हैं, एंटर करते हैं बिजनेस में. एक 14,000 रुपये ज़्यादा लगा रहा है क्यू से, बट पी हैज़ इन्वेस्टेड फॉर 8 months और क्यू ने इन्वेस्ट करा है 10 months के लिए. ठीक है. इफ पी शेयर इज 400 मोर देन द क्यू शेयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 2000, व्हाट इज द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पी. क्यू ने देखो एक्स करा है और पी ने करा है एक्स प्लस 14,000. 30, राइट. इसने करा, पी ने 8 महीनों के लिए, इसने करा 10 महीनों के लिए. तो ये कट के 4/5 हो जाएगा. सो वी आर गेटिंग अ रेशियो ऑफ 4x प्लस 56,000 एंड 5x. ये इनका रेशियो बन रहा है बेसिकली. और इनके रेशियो में अगर p को, अगर q का शेयर y आ रहा है और p का शेयर जो है वो y प्लस 400 है, तो टोटल शेयर विल बी 2y प्लस 400 और टोटल शेयर हमें 2000 रुपीज़ लिखा हुआ है. तो यहाँ से और ये वाला रेशियो y प्लस 400 बाय y, ये इसके इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ से y की वैल्यू हम निकालेंगे 8,000 रुपीज़, सॉरी 800 आ रहा है y की वैल्यू. तो वी आर गोइंग टू अप्लाई इट हेयर. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 4x प्लस 56,000 और अपॉन में 5x, और यहाँ पे बनेगा 1200 अपॉन में 400. दैट मीन्स 3:1. ठीक है ना. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x प्लस 56,000 इज इक्वल टू 15x. तो ये यहाँ जाएगा तो 11 बचेगा. $1200 by 800 है. मैं क्या कर रही हूँ? इट इज 800 हेयर. तो 4 3s 4 2s 3/2 आ रही है. तो ये हो गया 8 और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे. 8 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा. दैट विल गिव यू 7x. और आपने 56,000 इंटू 7 को इंटू 2 को 7 से डिवाइड करना है. आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. ये होता है 8,000 और इंटू 2 करेंगे तो 16 आ जाएगा. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ q. उसने 14,000 उससे ज़्यादा लगाए हैं, तो उसने कितने लगाए हैं? 30 लगाए हैं.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, पी की सैलरी जो है वो क्यू से 20% लो है, तो मतलब क्यू की सैलरी अगर 5 है तो पी की सैलरी 4 है, ठीक है। सैलरी विच इज 20% लोअर देन द आर सैलरी, और आर की सैलरी इससे आर की सैलरी से 20% कम क्यू की सैलरी है। तो अगर आर की सैलरी 5 है तो इसकी सैलरी 4 हो जाएगी। सो टू मेक इट इवन व्हाट we have to do, we have to multiply it with both the numbers। तो ये हो गया 25 और ये हो जाएगा, तो 16:20 रेशियो 25 का रेशियो बन रहा है, ठीक है। बाय हाउ मच परसेंट आर की सैलरी कितनी ज़्यादा है पी से, तो कितनी ज़्यादा है भाई देख लो, 9 ज़्यादा है, 9/16 इंटू 100, मल्टीप्लाई इट, सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। चलो इसका आंसर मेरे को सॉल्व करके कमेंट में बताना। दिस इज आई एम गिविंग यू होमवर्क, सब बता दिया वैसे तो मैंने, सॉल्व भी करना है बस। क्वेश्चन नंबर 27, अ नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट बाय 4। अगर कोई नंबर x था वो x/4 हो गया जबकि उसे 4x होना चाहिए था, तो कितना परसेंटेज चेंज आया उसके अंदर। तो x/4 को 4x से मल्टीप्लाई करके उसका परसेंटेज निकालना है हमें, ठीक है। तो इट विल गिव यू 1/16, और 1/16 अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, द परसेंटेज वैल्यू इज वेरी लेस, 1/16 का होता है 6.25, तो 6.25 परसेंटेज आ रहा है, इसको हमने 100 से माइनस करना है तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, एक एग्जामिनेशन में 80% स्टूडेंट्स जो थे वो इंग्लिश में पास हुए, 70% जो है वो हिंदी में पास हुए, और 15% जो है वो दोनों में फेल हो गए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। ओके, टोटल इज 100। दिस इज़ इंग्लिश 80%, दिस इज़ हिंदी 70%, और ये जो एरिया आ रहा है ये आ रहा है आपका 15% का। तो इस पूरे 80 में से 15 आ गए, तो कितने बचे बाकी के, आपके बचे 65, और यहाँ पे 70 में से 15 निकल गए, तो कितने बचे 55, राइट, जो कि 1% ऑफ उसमें पास है। अच्छा ये पास्ड है, और 15% आर फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, 15% आर फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, हमें चाहिए पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, तो वी कांट यूज दिस फॉर्मूला, हमें पास्ड वाला चाहिए, सॉरी। तो देखो 100 अगर 100% है, 100% में से 100% में से 15 तो परसेंट ऐसे बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो हमारा जो कंपटीशन है वो सिर्फ 85% बच्चों से है। अब उसमें से 80% स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास हुए हैं और 70% स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी में पास हुए हैं, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो इट विल गिव यू 150, ठीक है। और 150 में से अगर हम 85 माइनस कर दें तो वो परसेंट ऑफ बच्चे आ जाएंगे जो कि दोनों में पास होंगे। डिड यू गेट इट? इट विल गिव यू 65, तो 65% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों पेपर्स में पास हैं। तो सिर्फ एक में पास होने वाले कितने बच्चे हुए, यहाँ पे बचे 15 और यहाँ बचा 5, दैट इज 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, अ फादर सेड टू हिज सन, N years back I was as old as you are now। ठीक है, तो बच्चा जो है वो अगर जितने भी साल का है, x years का है, जो फादर जो है उसमें से अगर हम x years n माइनस कर दें तो वो x years का हो जाएगा। My present age is 4 times your age n years back। पापा की जो प्रेजेंट एज है वो 4 टाइम्स है x माइनस n के,
ठीक है। x की वैल्यू f माइनस एन है, यहाँ पर डाल दो x की वैल्यू f माइनस एन, तो 4 है, f माइनस एन तो हो गया f माइनस 2n, f आ गया यहाँ पे। What the sum of the present age of father and his son is 130 years. Wow, very old, 130 है। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, f प्लस एक्स 130 हमें पता चल गया है, ठीक है। What is the difference between their ages? f माइनस एक्स मतलब n की वैल्यू निकालनी है, ओके। x की जगह पे n डाल दो, f माइनस एक्स इज इक्वल टू n, तो n की जगह पे रिप्लेस करते हैं अगर हम, तो ये इक्वेशन थोड़ी सी अलग बनेगी फिर। एट एक्स माइनस 2f, 3f इज इक्वल टू 8x, तो f बाय x की जो रेशियो है वो 8:3 हो गई, दैट इज 11 हो गई है। दोनों को जोड़ के तो f माइनस एक्स जो होगा वो 5x मतलब 5 का मल्टीपल होना चाहिए, और यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो 5 का मल्टीपल है, 8 माइनस 3 5 होता है ना। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 1000 लीटर्स इज 1 मीटर क्यूब, 1 मेट्रिक टन इज 1000, इसमें से कितनी चीज़ें करेक्ट हैं ये बता दो। फर्स्ट इज आई थिंक 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर, वो तो ठीक है, ठीक है। 1 मेट्रिक टन जो है वो क्या 1000 केजी के इक्वल होता है, और 1 हेक्टेयर कितना मीटर स्क्वायर होता है बताओ। 1000 लीटर इज 1 मीटर क्यूब, 1 मेट्रिक टन इज 1000 केजी, ये भी ठीक है, और 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 1000 मीटर स्क्वायर, तो 1000 में 3 जीरो वो 10,000, तो सारे ठीक है, ठीक है, डी पार्ट। चलो फटाफट से अब बाकी के पैसेज और क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, 10 मोर क्वेश्चंस टू गो, ओके, लास्ट 10 क्वेश्चंस बचे हैं, फिर बाकी के 40 पार्ट 2 में। Passage number 1. The history of science is a real history of mankind. In this striking epigram, a 19th century writer links science with its background. Like most epigrams, its power lies in emphasizing by contrast an aspect of truth which may be easily overlooked. In this case, it is easy to overlook the relations between the science and mankind and to treat the former as some abstract third party, which can sometimes be praised for its beneficial influences, but frequently and conveniently blamed for horrors of war. Science and mankind cannot be divorced from time to time at man's convenience, yet we have seen that, in spite of countless opportunities for improvement and opening years of present period of civilization, have been dominated by internal conflict. In this inevitable result of the program of science, or does the fault lies elsewhere? क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं भाई कि साइंस के बिना मैनकाइंड कंटिन्यू हो ही नहीं पाता अभी तक? आई डोंट थिंक सो। द पैसेज इज सेइंग दैट इट इज द साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड, ये भी नहीं कह रहा, नीदर नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेट ऑफ assumptions बताने। the horrors of the modern life are inevitable result of the progress of science. The aspect of truth likely to be overlooked is that science is what man has made it. Okay, I think 2 is good. Inevitable तो नहीं होना चाहिए, तो it should be 2 only. Passage 2. Only with long experience and opening of his wares on many a beach where his language is not spoken, will the merchant come to know the worth of what he carries, and what is parochial and what is universal in his choice. Such delicate goods
As justice, love, and honor, courtesy, and indeed all the things we care for are valid everywhere, but they are variously molded and often differently handled, and sometimes nearly unrecognizable. If you meet them in a foreign land, and the art of learning fundamental common values is perhaps the greatest gain of travel to those who wish to live at ease among their fellows. Okay, when we meet other people while we travel, we learn to differentiate between imagination and understanding. ठीक है. Question number 34 with the reference to the above passage assumption क्या कर सकते हो? Travel led to understanding of humans. Travel helped those who wish to learn fundamental common values. A person with long experience in travel can resolve differences amongst the people. ये resolve वाली चीज़ तो नहीं कह सकते हम. Only 1 and 2 will be for my side. ठीक है. Let x be a 2-digit number and y be another 2-digit number formed by interchanging the digits of x. तो अगर x है 10x plus y, तो y क्या बन गया 10y plus x. अब हम दोनों ने इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बनेगा 11x plus 11y. तो 11 will be common, x plus y बीच अंदर आ जाएगा. इज द ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर. ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर मतलब 99. तो x plus y क्या हुआ x plus y will be 9. Then the number of possible values of x क्या हो सकता है 1 8, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है 2 7, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है 3 6 का कॉम्बिनेशन हो सकता है और 4 और 5 का कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 2 3 4 ऑप्शंस. नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 8, इसको ऊपर नीचे मतलब आगे पीछे भी कर दोगे तो डबल हो जाएंगी वैल्यूज 8 हो जाएंगी. ठीक है. Consider the following question. Weight of 6 boys is equal to weight of 7 girls. Weight of 3 men is equal to weight of women. 6 boys का जो weight है वो 7 girls के equal है, जो कि 3 men के equal है, जो कि 4 women के equal है. The average weight of the woman is 63. Okay, 4 women का average weight 63 आ रहा है तो मतलब 12 24 to 52 आ गए. ठीक है. देन फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज. तो बॉयज का एवरेज वेट क्या हो जाएगा 252 बाय 6. तो 6 4 24 6 2 12 42 kgs. चलिए क्वेश्चन नंबर 37. इतनी ऊपर कहाँ जा रहा है. हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड इन अ क्लॉक बिटवीन 10 AM to 2 PM. अच्छा, एक घंटे में मिनट हैंड और आवर हैंड कितनी बार टकराएगी ये बताओ. एक घंटे में मिनट हैंड पूरी घूमती है तो वो एक घंटे में एक बार टकराएगी आर हैंड से, एक बार तो टकराएगी है ना. अब 10 बजे से 2 बजे के बीच में कितना घंटों का डिफरेंस है 11 12 1 2 4 घंटे है तो 4 बार टकराएगी. ठीक है. ओके. हाँ, द कैलेंडर ऑफ 2025 का जो कैलेंडर है वो किस कैलेंडर से सेम होगा. अब कैलेंडर वाली चीज़ में ना आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है. जब कैलेंडर सेम होते हैं ना तो सेम कैलेंडर कब होता है आप ये बताओ. पहले तो 2024 वॉज अ लीप ईयर है ना, 2025 से जस्ट पहले, तो मतलब लीप ईयर का +1 कर देंगे हम तो 2025 आ रहा है. अगर लीप ईयर का +1 है तो इसका एग्जैक्ट सेम जो कैलेंडर होगा वो इसमें हमें +6 ईयर्स करने पड़ेंगे, दैट इज 31. ठीक है. अगर लीप ईयर +2 होता है तो आपको +11 करना पड़ता है उस साल में. अगर लीप ईयर +3 है तो भी आपको जो कैलेंडर है उसमें +11 करना होता है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 39. लेट P Q R एंड S बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स और P और Q जो हैं वो ऑड हैं और R और S जो हैं वो इवन हैं. ठीक है. ये R और ये S इवन है तो इवन और ऑड को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा. यस आएगा. अब ये चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, मल्टीप्लाई तो इवन नंबर से ही हो रहा है तो इवन ही रहेगा. तो 1 इज गुड.
ठीक है, आई बात समझ सबको क्यों हुआ ये? ओके, अब Q इज हमारा ऑड नंबर, Q का जो स्क्वायर है वो भी ऑड होगा, और S क्योंकि इवन नंबर है तो ऑड इंटू इवन विल बी इवन। ठीक है, अब ये अगर ये पूरा टर्म इवन हो गया तो ये नंबर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, टोटल विल बी इवन। ओके ग्रेट, P इज ऑड, S इज इवन। जब इवन और ऑड को आप ऐड करते हो, ऐड करोगे तो ऑड आएगा। ठीक है, Q इज ऑड, R इज इवन। Q और R को अब ऐड करोगे तो ऑड आएगा, और ऑड का स्क्वायर भी ऑड होता है। तो जब आप दो ऑड को ऐड करोगे तो इवन आना चाहिए, यहाँ ऑड लिखा है ये गलत हो जाएगा। Only 1 and 2 will be the final answer. Now last question of today's class. What is the angle between minute hand and the hour hand when the clock is showing 4:25? आप एक क्लॉक बनाओ, ठीक है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, तो 4:25 पे जो घड़ी है वो यहाँ होगी और 25 पे मिनट हैंड यहाँ होगी। तो मतलब इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस बताना है। पूरे 360 को अगर आप 12 हिस्सों में बांट दो और उसमें से एक हिस्से की वैल्यू निकालनी हो तो हमारे पास 30 डिग्रीज आना चाहिए। अब ये 30 डिग्रीज से थोड़ा कम हो सकता है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पार्ट्स में तो डिवाइड करा हमने पूरे 360 डिग्री को। तो एक डिग्री, एक दो नंबर्स के बीच में जो गैप आ रहा है, जो दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में, वो 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मिनट हैंड 25 तक पहुंची है तो आर हैंड भी थोड़ी और कम होगी, तो हम 30 से थोड़ा कम लेकर जाएंगे, उसे 20 डिग्री पे लेकर जाएंगे। ठीक है, नाउ इसका पार्ट 2 के लिए इंतज़ार करें आप। मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी वेडनेसडे को। इसके बाकी के जो 40 क्वेश्चंस हैं वो हम इसको बाकी के 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। 2024 का क्वेश्चन पेपर ख़त्म करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग भी रेस्ट करिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एवरीवन।